Myself, Dr. Apurva from Hansraj College, and I'm here to tell you what all different papers are offered to you under the new education policy 2020 under NEP. यूजुअली स्टूडेंट्स कम टू मी एंड आस्क कि मैम इतने सारे पेपर्स हैं एस सी सी ई ए सी वी ए सी, हम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए, हम कौन सा पेपर चूज़ करें, कैसे चूज़ करें. सो इन दिस स्लाइड what I have done is I have listed down what all papers are available to you and what all things you should keep in mind while choosing a paper. So let's start. सो NEP जो है, जो 2020 NEP है, उसका एक मेन मोटिव ये है टू गिव यू एन इंटरडिसिप्लिनरी और अ मल्टी अप्रोच so that you can study papers which are coming from different disciplines. Now, what is this discipline word means? So, discipline means the subject in which or the course in which you have taken the admission. So, suppose you have taken admission in BA Honors Economics course. So, economics becomes your discipline. If you have taken admission under BSc Chemistry Honors, so your discipline becomes chemistry. Okay, so under this entire NEP system, if you are an honors student, whether it's BA Honors, BCom Honors or BSc Honors, under this entire system, under this multidisciplinary approach, you have all these different papers which are available to you. So if you are an economics honor student, then your discipline, as I mentioned, is economics. So the first type of papers that you have to study under NEP are your discipline specific papers. That means the papers which are specific to your own discipline. And under this also there are two different types of papers. One are the core papers and the second are the elective papers. Core papers are the compulsory papers. So if you are BSc Honors Chemistry student, so there are 3 papers which are compulsory for you people, which are specific to your discipline or specific to chemistry only. So in semester 1 you have to study 3 papers which are specific to your own discipline. Then comes the discipline specific elective papers. These elective papers, elective means to elect something. So these elective papers means that you will be given a pool of papers which are specific, discipline specific, which will be specific to your own discipline, and then you have to choose any one paper. But this discipline specific elective papers will come from semester 3 onwards. So these papers, if I say discipline specific elective papers, these are coming from 3rd semester onwards. So अभी first semester में आपको इन papers के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Core papers means compulsory papers which are specific to your discipline. आप maths honors के students हो, so these papers are compulsory papers of maths honors. Okay. Now coming to all these other types of papers. Now these are again all elective types of paper. Elective again means to choose something. So first let's come to this ability enhancement papers. So what these papers are? So in these papers, the university tries to enhance your ability in any language and in environmental sciences. So in Hansraj College, all the arts courses, arts honors courses, that means BA Honors Economics, BA Honors Hindi, BA Honors English, all these arts courses and BCom Honors, they study environmental sciences in semester 1 or EVS. And all the science students like BSc Honors Physics, BSc Honors Chemistry, BSc Honors Zoology, all these science honors courses, they study one language paper. Language can be English, Hindi, Marathi, Tamil, any of the 22 languages which are listed by our constitution. Okay, so ability enhancement courses may in one semester you are going to study environmental sciences and in another semester you are going to study a language which again you can choose, but you have to see whether you can actually study that language or not. Then comes your generic elective papers. Elective again you have to choose, and generic means some general pool of papers. So what are these types of papers? So these are the papers which you have to choose, which are not specific to your discipline. So if you are say BA Honors Economics student, then apart from economics discipline or apart from the papers which are offered by economics department, you can choose any paper being offered by any other department.
So here I have listed down the papers, and here I have given you an example. So if you are an economics honor student, you cannot choose the papers which are offered by economics department under generic elective. Rest, for any other department you can choose any paper. Take another example. Say suppose you are botany honors student, BSc honors botany के आप बच्चे हो. Botany department is offering a paper basic laboratory and field skills in plant biology. So आप अगर बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप इस पेपर को छोड़ के, इस पेपर को, सॉरी इफ आई गो बैक, सो इस पेपर को छोड़ के, इस पेपर को छोड़ के आप कोई भी पेपर ले सकते हो. सो जेनेरिक इलेक्टिव का मतलब यही है कि अपने डिसिप्लिन को छोड़ के कोई और डिसिप्लिन का पेपर लेना. ओके, द थर्ड टाइप ऑफ पेपर्स दैट वी हैव are your skill enhancement courses and your value addition courses. ये दोनों courses अलग अलग types के हैं, लेकिन दोनों courses में क्या हो रहा है, skill enhancement है, as the name suggest कि आपका कोई ना कोई skill develop हो रहा है, either communication skill or writing skill or computer based skill or any other type of skill. Value addition courses में the university tries to provide you some value, आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेंगे, ईदर रिलेटेड टू फिटनेस और रिलेटेड टू मेंटल वेलबींग और रिलेटेड टू हैप्पीनेस, ऑल दीज थिंग्स. सो ये स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडिशन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, कुछ 30 से 50 पेपर्स की एक पूरी लिस्ट बना रखी है और उनका सिलेबस भी पूरा प्रिस्क्राइब्ड है. और यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप इस लिस्ट में से कोई भी एक पेपर चूज कर लीजिए. सो VAC पेपर जो है वो आपको 4 सेमेस्टर्स तक पढ़ने हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4. SCC पेपर्स जो हैं वो आपको अगले 6 सेमेस्टर्स तक पढ़ने हैं, सो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो पूरे ये जो 30 से 50 पेपर का पूल है उसमें से आप कोई भी एक पेपर उठाइए, उसको सेमेस्टर 1 में पढ़िए, आपने पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में गए, आप सेमेस्टर 2 में गए, अगेन सेमेस्टर 2 में आप कोई भी एक पेपर उठाइए, वो पढ़ लीजिए. पेपर रिपीट नहीं कर सकते आप. अगर कोई पेपर सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया है तो वो पेपर आप दोबारा सेमेस्टर 2 या 3, 4 में नहीं पढ़ सकते हो. सो वो ऐसे पूरी एक लिस्ट बनी हुई है. अब होता क्या है, सो दीज आर दी SCC पेपर्स विच आर ऑफर्ड बाय हंसराज कॉलेज. जब 30 से 50 पेपर्स की पूरी लिस्ट है, फॉर एनी कॉलेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑफर ऑल दीज 30 to 50 पेपर्स. सो कॉलेजेस क्या करते हैं, कुछ कुछ पेपर्स ही ऑफर करते हैं. हंसराज कॉलेज ने SCC के लिए ये पेपर्स ऑफर कर रखे हैं. इन सेमेस्टर 1 यू कैन चूज एनी ऑफ दीज पेपर्स. VAC के लिए हंसराज कॉलेज ने ये पेपर्स ऑफर कर रखे हैं. अगेन यू कैन चूज दीज पेपर्स. अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ये तो 30 पेपर्स की या 50 पेपर्स की लिस्ट है, हंसराज कॉलेज इतने कम ऑफर कर रहे हैं, मेरे को तो इनमें से कोई नहीं समझ आ रहा. मेरे को से सपोज मैंने कहा, एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि मैम मेरे को तो एक्सेल से रिलेटेड कोई पेपर पढ़ना है. से फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पेपर इन SCC विच इज़ नोन एज एडवांस एक्सेल स्प्रेडशीट. अब यहाँ पे कहीं पे भी वो पेपर नहीं है. बच्चा आया और बोला कि मैम मेरे को ये पेपर पढ़ना है, ये तो कहीं पे भी ऑफर नहीं हो रहा है हमारे कॉलेज में, तो हम क्या करें. सो यूनिवर्सिटी आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है. यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर कोई पेपर आपके कॉलेज में नहीं ऑफर हो रहा है अंडर SCC एंड VAC, तो आप एक काम कीजिए, आसपास के कॉलेजेस में देखिए क्या वो पेपर ऑफर हो रहा है क्या. अगर वो पेपर ऑफर हो रहा है एंड ओनली अंडर SCC, VAC एंड AEC, तो आप वो पेपर अपने आसपास के कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं. एंड दिस इज समथिंग व्हाट इज नोन एज क्लस्टर कॉलेजेस. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है, कॉलेजेस को उनके एरिया के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दिया. सो हंसराज कॉलेज जो है वो नॉर्थ क्लस्टर में आता है क्योंकि वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है. सो आप देखेंगे ये पूरा नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट है. नॉर्थ के में आप देखेंगे जितने भी आसपास के कॉलेजेस हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है. सो अगर आप कहते हैं कि भाई कोई पेपर है जो हंसराज कॉलेज में नहीं ऑफर हो रहा इन SCC, VAC और AEC, आपने कहा कि भाई वो किरोड़ीमल कॉलेज में ऑफर हो रहा है या वो दौलत राम कॉलेज में ऑफर हो रहा है, तो वो पेपर आप उस कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं. पर कंडीशन ये है कि वो पेपर हंसराज में ना ऑफर हो रहा हो. अगर वो पेपर हंसराज कॉलेज में ऑफर हो रहा है तो आप यहीं पढ़ेंगे. अब कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैम यहाँ पे तो देखिए कि एक पेपर है जो सिर्फ औरबिंदो कॉलेज में ऑफर हो रहा है और कहीं ऑफर नहीं हो रहा, मेरे को तो यहीं जाके पढ़ना है.
अब प्रॉब्लम क्या है, आप हैं हंसराज कॉलेज नॉर्थ में, औरबिंदो कॉलेज है साउथ में, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप नॉर्थ से साउथ में जाके वहाँ क्लासेस अटेंड करें। सो यूनिवर्सिटी प्रेफर्स कि आप अपने ही क्लस्टर में क्लासेस अटेंड करें, आपको दूसरे क्लस्टर में जाके क्लासेस अटेंड करना अलाउड नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप अपने कॉलेज में क्लास अटेंड करेंगे या 1.5 से 2 घंटा लगा के दूसरे कॉलेज में जाएंगे जो इतनी दूर है। इसलिए बेटर है आप अपने ही कॉलेज में ही या अपने ही क्लस्टर के कॉलेजेस जो हैं उसी में ही आप एससीसी या वीएसी पढ़ें। ये सुविधा एससीसी, वीएसी और एईसी, if I go back, if you remember, these are different types of papers which are available to you. जो क्लस्टर कॉलेजेस में जाके आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वो सुविधा आपको सिर्फ एईसी, लैंग्वेज, एसईसी और वीएसी में अवेलेबल है। वो सुविधा आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स में अवेलेबल नहीं है, वो सुविधा आपको जीई पेपर्स में अवेलेबल नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैम मैं ये जीई पेपर लेना चाहता हूँ, वो हमारे कॉलेज में ऑफ़र नहीं हो रहा, और वो से सपोज दौलत राम में ऑफ़र हो रहा है, मैं वहाँ जाके पढ़ना चाहता हूँ। सो जीई पेपर आप दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। सिमिलरली एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस भी आपको अपने कॉलेज में पढ़ना है। सिर्फ लैंग्वेज का जो एईसी है, मराठी है, तमिल है, अगर आपको लग रहा है हमारे कॉलेज में ऑफ़र नहीं हो रहा है, तो ही आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। सो एक क्लस्टर कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ आपको एईसी, लैंग्वेज, एसईसी और वीएसी में अवेलेबल है, जीई या स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज में अवेलेबल नहीं है। So these are different types of papers which are available to you under NEP. Now certain questions that student ask कि मैम अब पता कैसे करें कि हमें कौन सा पेपर चूज करना चाहिए, कौन सा पेपर ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा पेपर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज। सो मैंने क्या करा है, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। सो दिस चेकलिस्ट इंक्लूड 3 थिंग्स, यू हैव टू चेक दीज 3 थिंग्स। अब और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है एलिजिबिलिटी। So whether you are eligible to take a paper or not. Say suppose for example you are BA Honours Economics students, Economics Honours के student हो, आपने बोला कि मैम मेरे को GE जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का पढ़ना है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कोई पेपर ऑफर कर रहा है एंड यू वांट टू स्टडी केमिस्ट्री का पेपर। आई सेड ओके यू कैन डू इट बट डू चेक द एलिजिबिलिटी। हो सकता है उस पेपर में एक एलिजिबिलिटी कंडीशन लगा दी दैट यू मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री इन क्लास 11th and 12th। अगर आपने केमिस्ट्री क्लास 11th 12th में नहीं पढ़ी है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक दैट पेपर। सो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि भाई मैं उस पेपर के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। अगर बिना एलिजिबिलिटी चेक करे आपने कोई पेपर चूज कर लिया तो प्रॉब्लम आगे जाके आपको होगी। सो सिलेबस जो है हर पेपर का वेबसाइट पे अवेलेबल है, डीयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा होता है। सो जस्ट चेक द एलिजिबिलिटी। सेकेंड थिंग इज प्री रिक्विजिट्स। कई बार क्या होता है, कुछ पेपर्स क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये पेपर का हमारा कंटेंट है, इसको पढ़ने के लिए देयर आर सर्टेन नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स लाइक अ प्री कंडीशन। टेक एन एग्जाम्पल, अगेन इफ सपोज यू आर अ BA Honours Economics student एंड इफ यू वांट टू टेक केमिस्ट्री का GE, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कोई GE का पेपर ऑफर करा एंड यू वांट टू टेक दैट पेपर, उन्होंने ये बोला कि एलिजिबिलिटी कंडीशन है क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ी हो। सपोज आपने क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है सो यू आर एलिजिबल, लेकिन उन्होंने प्री रिक्विजिट साथ में क्या लगा दिया कि से सपोज केमिस्ट्री में आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो है बट सपोज अगर आपके केमिस्ट्री में 70% मार्क्स नहीं हैं तो आप उस प्री रिक्विजिट को मीट नहीं कर रहे हैं। टेक एन अदर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कुछ पेपर्स जो होते हैं वो लेवल्स में जाते हैं, उनका एक प्रोग्रेशन होता है। सो टेक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का GE पेपर है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एक हायर लेवल का पेपर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 करके है। सो चेक देयर एलिजिबिलिटी एंड चेक देयर प्री रिक्विजिट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एक पढ़ा होना चाहिए पेपर तभी आप दूसरा कर सकते हो। टेक एन अदर एग्जाम्पल, और ये सिर्फ GE में नहीं है, ये SEC वगैरह में भी है। SEC का एक पेपर है जिसका नाम है IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस।
और SCC में क्या है कि ये दो पेपर्स जो हैं, ये पेपर दो पार्ट्स में आ रहे हैं. यू हैव पार्ट 1 एंड यू हैव पार्ट 2. और ये क्लियर पता चल रहा है पार्ट 2 इज अ हायर अप और अ लेवल अप कंपेयर टू पार्ट 1. और पार्ट 2 आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने पार्ट 1 नहीं किया हो. सो सिलेबस में कई बार क्या होता है, ये प्री रिक्विजिट गिवन होते हैं कि डू चेक वेदर यू हैव स्टडीड पार्ट 1 और नॉट, या डू चेक कई बार प्री रिक्विजिट ऐसे होते हैं कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, सो वेदर यू हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और नॉट टू डू पार्ट 2. सो चेक द एलिजिबिलिटी एंड चेक द प्री रिक्विजिट, ये बहुत ज़रूरी है. थर्ड चेक पॉइंट आता है सिमिलर पेपर्स का. कई बार क्या होता है कि पेपर के नाम बहुत सिमिलर होते हैं और एज अ रिजल्ट उनका कंटेंट भी सेम होता है. अब अगर आप यहाँ देखें, पेपर का नाम बहुत सिमिलर है, बस पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये क्लियर पता चल रहा है पेपर्स में एक प्रोग्रेशन है, एक लोअर लेवल है, एक हायर लेवल है. कई बार पता नहीं चलता कि भाई वो प्रोग्रेशन है भी या नहीं है, पेपर्स के नाम बहुत सेम से होते हैं. से फॉर एग्जांपल एक SCC का पेपर है पाइथन पे, पाइथन इज अ कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज. सो एक SCC का पेपर है लर्निंग विद पाइथन या स्टेटिस्टिक्स विद पाइथन, ऐसा करके कोई पेपर है. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. सिमिलरली हो सकता है कि आप कोई GE पेपर ऐसा लेना चाहते हो जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद पाइथन. अब हैं दोनों पाइथन के पेपर ही. सो आप ये देखिए कि उसका कंटेंट क्या है. कंटेंट अगर उसका काफ़ी सिमिलर है, तभी मैंने यहाँ पे कहा सिमिलर पेपर्स, कंटेंट ज़रूर चेक करिए. अगर पेपर्स का कंटेंट काफ़ी सिमिलर है, सो जब आप अपने CV में लिखते हैं कि आपने इतने अलग अलग टाइप के पेपर्स पढ़े, एक पेपर आपने पढ़ा प्रोग्रामिंग विद पाइथन, दूसरा पेपर आपने पढ़ा लर्निंग पाइथन, सो आपके CV जो है वो एक गलत इंप्रेशन रिक्रूटर्स को देगा कि भाई इसने पढ़े तो इतने सारे पेपर्स हैं, लेकिन सारे पेपर्स हैं पाइथन से रिलेटेड ही, या दो पेपर्स हैं जो पाइथन से रिलेटेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिलेबस टाइप जा रहा है. सो वो बहुत गलत इंप्रेशन देगा. सो बेटर ये है कि पेपर्स का सिमिलैरिटी चेक करो. अगर कंटेंट मेजरली सेम है, सो अवॉइड टेकिंग दोज पेपर्स, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट के पेपर्स ले लो. Another important thing which is coming from this entire checklist का thing, when you are choosing a paper, don't just think about कि मुझे semester 1 क्लियर करना है. थिंक इन लॉन्ग टर्म कि भाई सेमेस्टर 2 में भी पेपर्स चूज करने, 3 में भी करने, और ये पूरी चॉइस जो है वो मेरी 8 सेमेस्टर्स तक जाएगी. सो आई शुड चूज अ पेपर जिसमें मेरा प्रोग्रेशन नज़र आए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सेमेस्टर 1 में कोई एक पेपर चूज कर लिया, सेमेस्टर 2 में कोई ऐसा पेपर चूज कर लिया विच आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड. सो अपने प्रोग्रेशन को शो कीजिए कि हाँ मैंने सेमेस्टर 1 में लोअर लेवल का पेपर पढ़ा, सेमेस्टर 2 में हायर लेवल का पढ़ा, सेमेस्टर 3 में और हायर लेवल का पेपर पढ़ा. Another thing, check the eligibility and prerequisites of the papers which are offered in your third semester, fourth semesters or in other semesters as well. कई बार क्या होता है कुछ पेपर्स में एलिजिबिलिटी या प्री रिक्विजिट ऐसे डाल देते हैं. से सपोज कोई पेपर है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में जाके ऑफर हुआ, एंड दैट पेपर इज से सपोज जस्ट अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सेम 3 में आपको एक पेपर ऑफर हुआ है विच इज नोन एज इंटरमीडिएट कैलकुलस. ये थर्ड सेमेस्टर में ऑफर हुआ है. इसके लिए एलिजिबिलिटी या प्री रिक्विजिट ये डाल दी कि आपको सेमेस्टर 1 में एक पेपर है बेसिक कैलकुलस, वो पढ़ा होना चाहिए. अब जब आप सेमेस्टर 1 का अपना चॉइस कर रहे थे, आपने देखा नहीं कि 3 और 4 में क्या ऑफर हो रहा है, आपने कहा सेमेस्टर 1 में ही चॉइस करनी है ना, आपने चॉइस कर ली. लेकिन जब आप सेमेस्टर 3 में पहुंचे, सेमेस्टर 3 में आपका कैलकुलस पढ़ने का मन था और कैलकुलस में आपको सिर्फ यही एक पेपर अवेलेबल था, और इसके में प्री रिक्विजिट है कि भाई आपको बेसिक कैलकुलस पढ़ा होना चाहिए. अगर आपने सेमेस्टर 1 में बेसिक कैलकुलस नहीं लिया होगा तो आप उस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है. सो डोंट जस्ट गो बाय द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1 पेपर्स ओनली. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सारे सब्जेक्ट्स का, सारे पेपर्स का सिलेबस अवेलेबल है. सो चेक द सिलेबस फॉर अदर सेमेस्टर पेपर्स एज वेल, एंड देन मेक योर डिसीजन कि भाई मुझे सेमेस्टर 1 में ये पेपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो पूरा एक अपना प्रोग्रेशन बनाते हुए, कंटेंट चेक करते हुए, सिलेबस चेक करते हुए, प्री रिक्विजिट एलिजिबिलिटी चेक करते हुए अपना फाइनल डिसीजन लीजिए. जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं इन 3 पॉइंट्स को, तभी मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट लिखी है.
चेक योर एलिजिबिलिटी, आपने देखा एलिजिबल है, टिक कर दिया, तो चेक करते चलो, प्री रिक्विजिट एलिजिबल है, चेक कर लिया। कंटेंट देखो, अगर कंटेंट लग रहा है मेजरली सिमिलर है, रुक जाओ, कोई और पेपर का कंटेंट देखो। अगर कंटेंट में काफ़ी अंतर है तो भाई हाँ, आपका सिमिलर पेपर्स वाला जो ऑब्लिगेशन है वो भी मीट हो रहा है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर ओनली एंड चूज द पेपर अकॉर्डिंगली। एंड हंसराज कॉलेज क्या करता है, उसका एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है विच इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं और ये पेपर्स चूज कर सकते हैं। एंड यूजुअली कॉलेज एक डेडलाइन सेट करता है, सो इट्स जस्ट अ सजेशन कि वो जो डेडलाइन है, यू फिल अप योर चॉइसेस बिफोर दैट डेडलाइन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टिल दैट डेडलाइन। वो डेडलाइन के बाद आप ना जीई या एससीसी एईसी ऑप्शन कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही उनको ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई वो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें एक डेडलाइन सेट कर रखी है, वो डेडलाइन चली गई तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो डेडलाइन से पहले पहले आप अपने ये सारे चॉइसेस आप भर सकते हैं, और जो भी अगर चेंज करना है वो डेडलाइन से पहले पहले आप चेंज कर लीजिए। डेडलाइन निकल गई मतलब आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो अपना डेस्टिनेशन याद रखिए कि आपको 3 साल या 4 साल आपको ये अलग अलग तरीके के पेपर्स पढ़ने हैं। पूरा अपना प्रोग्रेशन तैयार कीजिए, पूरा अपना लेवल तैयार करिए, सारे पेपर्स की एलिजिबिलिटी, प्री रिक्विजिट, सिमिलरिटी चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली मेक योर चॉइस। और चॉइस आपको किस किस के लिए करनी है, चॉइस आपको करनी है इन पेपर्स के लिए। जीई जो आप अपने डिपार्टमेंट का छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट का लेते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जिसमें लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन की है। एससीसी पेपर्स अगेन इट्स अ चॉइस बेस्ड पेपर जिसमें आपका स्किल एनहांस हो रहा है, एंड वैल्यू एडिशन कोर्सेज जिसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। और एक बार एक पेपर पढ़ लिया वो आप दोबारा नहीं पढ़ सकते हो। सो वो कंप्लीट लिस्ट है एससीसी और बीएससी पेपर्स की, उसमें से आपको हर सेमेस्टर कोई एक पेपर चूज करना है। एससीसी पेपर्स फॉर 6 सेमेस्टर्स and VAC papers for 4 semesters. So I hope this video will help to all the students who are making their choices of different papers under NAP, and I hope they will see this video and make a wise decision. All the very best.